Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss about the immune system. Immune system is basically an organ system which is meant for the defense and protection. In our body there are different types of organ systems and there is well established division of labor. Respiratory system is meant for the gases exchange and cellular respiration, and digestive system is meant for digestion and absorption of food. In the same way, there is one well organized system which is meant for defense and protection. That defensive and protective system is said to be called as immune system. बेटा ये जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम में सर ये बना है, इसमें कुछ सेल्स है, उन सेल्स को हम नाम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. प्लीज रिमेंबर, उनको हम बेटे नाम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. सर इसमें कुछ ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को हम या तो नाम देते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, या बेटे उनको हम नाम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स. एंड it's made up of what we called as the lymphoid tissues. Plus, it is made up of some chemicals. Those chemicals are said to be called as chemokines. Plus, इसमें होते हैं बेटा sir, those are called as complementary proteins which form the complement system. These immunocompetent cells, the primary lymphoid organs, the secondary lymphoid organs, the lymphoid tissues, chemokines, and the complementary proteins, they work in coordination and cooperation, and their main aim is to defend the body from the disease causing agents. Their main aim is to eliminate the infectious agents within the human body. That is why we say, sir, they are meant for the defense, they are meant for the protection. When we study these immunocompetent cells के बारे में पढ़ते हैं, immunocompetent cells जो है basically they are WBCs, white blood cells, what we call as leukocytes. उनमें B lymphocytes, T lymphocytes, eosinophils, basophils, neutrophils, macrophages, natural killer cells. These all cells have the power, they have the potential to counteract with the pathogens. That is why they are called as immunocompetent cells. इसी तरह से जो organs है, lymphoid organs है, इसमें bone marrow, primary lymphoid organs में bone marrow, thymus आता है. Because bone marrow से ही सारी blood cells बनती है, WBCs भी बनती है after birth. Thymus जो है, वहाँ पर T cells का maturation हो जाता है. और secondary lymphoid organs में spleen, lymph nodes और जो lymphatic tissues है, वो lymphatic tissues में याद रख लेना, जो lymphoid tissues है, उनमें lymphatic tissue जो है, उनमें आता है, सर उसको हम बोलते हैं, that is basically called as MALT. MALT stands for mucosa associated lymphoid tissue. और इस mucosa associated lymphoid tissue में हमें पढ़ना पड़ेगा GALT. That is called as gut associated lymphoid tissue, and NALT, nasal associated lymphoid tissue. आपने 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी पियर्स पैच जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, आपने उनका नाम सुना है. दैट आर बेसिकली मेंट फॉर द डिफेंस. दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. दैट इज बेसिकली लिम्फाइड टिश्यू देयर. इन द सेम वे कीमोकाइन्स, कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स, ये सारी इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, ये ऑर्गन्स, ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स, टिश्यूज आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ इनका एक ही मकसद है कि पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को डिटेक्ट करके उनको एलिमिनेट किया जाए ताकि जो ह्यूमन बॉडी है वो डिजीज फ्री रहे. इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है, जब हम इसका डिटेल में स्टडी करते हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, इनकी सेलुलर फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, इन ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, बोन मैरो को पढ़ते हैं, थाइमस को पढ़ते हैं, स्प्लीन को पढ़ते हैं, लिम्फ नोड्स को पढ़ते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज को पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स का मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं. सर जब हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट को, उसी फील्ड को बेटा हम नाम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. बट मेरे बच्चे को याद रखना है, स्टूडेंट को याद रखना है, भाई इम्यूनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, देयर इज सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. और उस टर्मिनोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटे, उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है.
जब अब हम टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब वो टर्म्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे, देन ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब टॉपिक्स of this subject what we call as immunology. So इस लेक्चर में मैं बात करूंगा बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले, और उसके बाद हम पहला क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में 6th सेमेस्टर में है, उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इम्यूनोलॉजी, उसके बारे में बात करूंगा। पहले हम टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे। चलिए बेटा, इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है। पहली टर्म जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बेटा एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इम्यूनोजन, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनोजन। और उसके बाद मैं बात करूंगा हैप्टिन के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्टिन। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट, उसके बाद हम बात करेंगे एपिटोप किसको बोलते हैं, एपिटोप। एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट सर पैराटोप किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैराटोप। एंड देन हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीटोप। एग्रीटोप एंटीजन क्या होता है, इम्यूनोजन क्या होता है, हैप्टिन क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, what do you mean by paratope and how paratope is different from the agritope। और मैं बात करूंगा एक टर्म, सर उस टर्म का बेटा नाम है एलर्जी। ये बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। और उसके बाद हम पहला क्वेश्चन जो है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एंटीजन, वो मैं भाई आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले सर एंटीजन क्या होता है, एंटीजन और इम्यूनोजन को कंपेयर करूंगा। भाई नीट में क्वेश्चन भी आता है, और जो एमएससी का एंट्रेंस है उसमें भी इस पे क्वेश्चन आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंटीजन एंड इम्यूनोजन। पहले एंटीजन हम किसको बोलते हैं? एंटीजन हम बोलते हैं कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एजेंट जो भाई बाइंड करेगा बेटे, जो बाइंड करेगा, which binds with antibody or which binds with T cell receptor, T cell receptor। सो बेटे आपको याद रखना है कि एंटीजन हम उस एजेंट को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो बाइंड कर सकता है, बाइंड कर सकता है या तो एंटीबॉडी के साथ, या वो बेटे बाइंड कर सकता है टी सेल रिसेप्टर के साथ। उस सब्सटेंस को आप बेटे नाम दे सकते हैं एंटीजन। और मैक्सिमम टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है ये एंटीजन जो है ये हमारी बॉडी के लिए फॉरेन होता है, ये हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ होता है। उसका ये मतलब हुआ कि ये सब्सटेंस हमारी बॉडी की सेल्स ने नहीं देखा होता है, इसलिए हमारी बॉडी की सेल्स के लिए फॉरेन होता है, नॉन सेल्फ होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ह्यूमन बॉडी में ही कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनते हैं जो हमारी नॉर्मल सेल्स ने नहीं देखे होते हैं, इम्यून सिस्टम की सेल्स ने नहीं देखे होते हैं। उन म्यूटेटेड प्रोटीन्स को भी हम कभी कभार बेटा नाम दे सकते हैं एंटीजन। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू हैव टू रिमेंबर एन एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस, बेटे जो बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ या जो बाइंड करता है टी सेल रिसेप्टर के साथ। और बेटे इस बाइंडिंग पावर को, द एबिलिटी टू बाइंड विद एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर, बेटे इस बाइंडिंग पावर को हम नाम बोलते हैं, इसी को बेटे हम नाम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। इसी को बेटे हम नाम बोलते हैं, शाबाश, क्या बोलते हैं? Antigenicity. So antigenicity is basically the binding power of an antigen to bind with an antibody or a T cell receptor. And maximum times, majority of times, an antigen basically comes from outside world and enters into our body. So it is foreign, it is non-cell. But yes, sometimes the abnormal cells, the neoplastic cells, the tumor cells can produce newly mutated versions of proteins which seem foreign to the body. Sometimes antigens can be created within the human body, but majority makes the rule. That is why maximum times antigens are basically non-self foreign proteins, foreign substances which enter into our body and have the ability to bind with an antibody or a T cell receptor, and उस बाइंडिंग पावर को बेटे हम नाम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। अब दूसरी टर्म जो है उसको हम बेटा नाम बोलते हैं इम्यूनोजन। ये इम्यूनोजन क्या होता है?
सो यहाँ पे आप याद रखेंगे एंटीजन को सिर्फ होता है बाइंडिंग पावर, इट हैज ओनली बाइंडिंग पावर। अब यहाँ पे आते हैं इम्यूनोजन किसको बोलते हैं। इम्यूनोजन बेटा हम उस फॉरेन सब्सटेंस को बोलते हैं, हम उस फॉरेन सब्सटेंस को बोलते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा और उसके बाद ये स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करता है या तो बी लिम्फोसाइट्स को, याद रखिएगा, it stimulates the B lymphocytes or it stimulates बेटे या ये स्टिमुलेट कर सकता है T lymphocytes को। कुछ फॉरेन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं या ये स्टिमुलेट कर सकते हैं, कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस स्टिमुलेट करते हैं बेटे टी लिम्फोसाइट्स को। और साथ साथ में इन फॉरेन सब्सटेंस को बाइंडिंग पावर भी रहता है, ये भी बाइंड कर सकते हैं या तो एंटीबॉडीज के साथ, एंटीबॉडीज के साथ, या बेटा ये बाइंड कर सकते हैं टी सेल रिसेप्टर्स के साथ। सो मेरे बेटे को यहां पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो इम्यूनोजन है उसको ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी एक एंटीजन को होती है। एक एंटीजन को भी बाइंडिंग पावर होता है, ये भी बाइंड कर सकता है एंटीबॉडी के साथ और इट कैन बाइंड विद टी सेल रिसेप्टर। इम्यूनोजन को भी वो प्रॉपर्टी होती है, इट हैज द बाइंडिंग पावर। पर बेटे इसमें स्टिमुलेटरी पावर भी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इंड्यूस करता है, elicit and it induces the B lymphocytes and the T lymphocytes. So an immunogen has two properties. It has the stimulatory power, it stimulates the B and T lymphocytes. It can stimulate either B lymphocytes or T lymphocytes, as well as it has the binding power. It can bind with antibodies because those antibodies are produced by the B lymphocytes called as plasma cells, or it can bind with the T cell receptors, and T cell receptors are present on the membrane of the T lymphocytes. So an immunogen explains antigen because immunogen has already that binding property, which the antigen has, but simultaneously it gives us another additional info that is about the stimulatory power. That is why हम ये बोलते हैं बेटे immunogen जो है, all immunogens are antigens but not all antigens are immunogens. So what is a correct statement? Antigen के पास दोनों प्रॉपर्टी नहीं रहती है, immunogen के पास दोनों प्रॉपर्टी रहती है। जब हम immunogen पढ़ते हैं हम ऑटोमेटिकली एंटीजन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। That is why the right statement is that all immunogens are antigens. All immunogens are right. They are Shivash. Yeah, antigens. But हम ये नहीं कह सकते all antigens are immunogens. But we can say all immunogens are antigens. Right? अब यहाँ पे एक important बात है, एक फॉरेन सब्सटेंस जिसको बहुत बाइंडिंग पावर होगा और स्टिमुलेटरी पावर होगा, इस प्रॉपर्टी को हम बेटा नाम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मींस a property of a foreign substance to stimulate the B and T lymphocytes as well as to bind with the antibodies or the T cell receptors. उसको बेटे हम नाम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा वो इस तरह के आप याद रखेंगे। मैं बेटे दो फॉरेन सब्सटेंस को लूंगा, I'll be taking two foreign substances into consideration। एक मैं यहां पे लिखूंगा, लेट्स सपोज ये एक फॉरेन सब्सटेंस है, ये कोई वायरल प्रोटीन है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। सर ये फॉरेन सब्सटेंस जो है अगर इसने बी लिम्फोसाइट को ये हमारी बॉडी में घुस गया, बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होके इसने बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया, क्या आप फ्यूजन कर दो ऑफ सर एक बनाओ प्लाज्मा सेल प्लस another you form the memory B cell। मेमोरी बी सेल को, इसको मेमोरी बी सेल ऑलरेडी इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेमोरी बी सेल को याद रहता है कि भाई इस वायरल प्रोटीन फॉरेन सब्सटेंस की शेप कैसी थी। सो उसके बाद ये प्लाज्मा सेल जो बेटा है ये बनाती है एंटीबॉडी और उसी एंटीबॉडी के साथ ये फॉरेन सब्सटेंस जो है बाइंड होता है।
फॉरेन सब्सटेंस ने एक साइड से भाई स्टिमुलेट किया और दूसरे साइड से इस फॉरेन सब्सटेंस ने बाइंड किया. सो अ फॉरेन सब्सटेंस व्हिच हैज बोथ स्टिमुलेटरी पावर एज वेल एज द बाइंडिंग पावर. That foreign substance stimulates the B lymphocyte. B lymphocyte, a type of lymphocyte, form the plasma cell. It is a plasma cell which forms the antibody, and it is that antibody which later on binds with that foreign substance. So indirectly, I can say foreign substance binds with an antibody. So this foreign substance has both stimulatory power as well as the binding power. And you are right to claim this foreign substance should be named as an immunogen, right? As an immunogen. In the same way, अगर मैं let us suppose यहाँ पे बेटे मैं लूंगा दूसरा फॉरेन सब्सटेंस कोई है बैक्टीरियल प्रोटीन, जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. मैं यहाँ पे लूंगा दूसरी सेल जो है कुछ फॉरेन सब, मैं यहाँ पे लिखूंगा टी लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट अस सपोज ये फॉरेन सब्सटेंस ए था, लेट अस सपोज ये मैं लिखूंगा दिस इज फॉरेन सब्सटेंस बी. इस फॉरेन सब्सटेंस बी ने टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया. कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं. आई विल बी टीचिंग, और रटा नहीं याद रखना भाई, आई विल बी टीचिंग इन द इम्यूनोलॉजी लेक्चर्स व्हाई वी हैव टू ब्रांचेस ऑफ इम्यूनिटी, व्हाई गॉड हैज गिफ्टेड अस बोथ बी एंड टी lymphocytes. Because B lymphocytes sometimes scum in front of certain pathogens. There are certain pathogens which deceive B lymphocytes. At that very time, T lymphocytes come to rescue. God is very great. He has gifted us everything. He has gifted us everything which can protect us from different types of disease-causing agents. We should be always thankful to him. फॉरेन सब्सटेंस जो बेटे हैं ये टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, बी मैंने ले लिया, और ये बोलता है टी लिम्फोसाइट को कि आप एक बनाओ इफेक्टर टी सेल. इफेक्टर टी सेल उस टी सेल को बोलते हैं जिस पे प्रेजेंट होता है टी सेल रिसेप्टर, और बनाओ मेमोरी टी सेल. मेमोरी टी सेल जो है उसको बराबर याद रहता है इस फॉरेन सब्सटेंस की क्या शेप थी. लेट अस सपोज इस फॉरेन सब्सटेंस की शेप ऐसी थी, लेट मी से इस फॉरेन सब्सटेंस की शेप ऐसी थी. अगर ये फॉरेन सब्सटेंस फिर दोबारा कभी ह्यूमन बॉडी में घुस गया, दो चीजें यहां पे देखनी है. वन, दैट इज कॉल्ड एज सीखना है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, एक वायरस जो है पहली दफा एक ह्यूमन बॉडी में घुस गया. ह्यूमन बॉडी ने इस वायरस को इससे पहले कभी नहीं देखा था. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये पहले इस वायरस को पहचानने में इसको टाइम लग जाएगा, फिर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग जाएगा. सो जो पहला रेस्पॉन्स एक ह्यूमन बॉडी किसी पैथोजन के खिलाफ देगी, द फर्स्ट रेस्पॉन्स दैट द ह्यूमन बॉडी विल गिव अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पैथोजन, उसको बेटा हम नाम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. इसमें भाई थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डिटेक्ट करने की शेप कैसी है, और उसके बाद उसकी शेप के उसी सरफेस पे कौन सा प्रोटीन है, फिर बॉडी को उसी के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है एंटीबॉडी. राइट है ना? उसमें हम बोलेंगे भाई रीअरेंजमेंट, वीटीजे रीअरेंजमेंट हम पढ़ाएंगे एंटीबॉडी डाइवर्सिटी का. सब प्राइमरी इम्यून रिस्पांस को बोलते हैं फर्स्ट रिस्पांस. लेकिन जब ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होता है, ये बी लिम्फोसाइट मेमोरी बी सेल बनाती है, और टी लिम्फोसाइट जो है वो मेमोरी टी सेल बनाती है. मेमोरी बी सेल को बराबर रहता है या भाई वायरस का कैसा था, उसकी शेप कैसी थी, और मेमोरी टी सेल को भी बराबर रहता है भाई वो कैसा था, पैथोजन कैसा था. राइट? अब अगर यही पैथोजन, यही फॉरेन सब्सटेंस उसी ह्यूमन बॉडी में दोबारा घुस जाएगा, नेक्स्ट चांस में घुस जाएगा, इस मेमोरी बी सेल जो है वो भाई विद इन द जिफी इसको पहचानेगी, और जो दूसरा रिस्पॉन्स होगा जिसको हम बेटा नाम बोलते हैं सेकेंड रिस्पॉन्स, दैट सेकेंड रिस्पॉन्स इज वेरी मच फास्ट, बिकॉज प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स गेट क्रिएटेड एंड दे रिमेंबर व्हाट वाज द शेप ऑफ द पैथोजन, एंड दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द सेकेंड रिस्पॉन्स दे रिकॉग्नाइज इट वेरी क्विकली एंड काउंटरैक्ट विद एंड ट्राई टू एलिमिनेट द पैथोजन. दैट इज व्हाई द सेकेंड रिस्पॉन्स इज वेरी मच फास्ट, इज वेरी मच क्विक. अब मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन सब्सटेंस बी है, ये फॉरेन सब्सटेंस ए था, ये वायरस एक था, ये दूसरा बैक्टीरिया था. लेट मी से इस बैक्टीरिया ने टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया, और याद रहे टी लिम्फोसाइट इफेक्टर टी सेल में भाई चेंज हो गई. इफेक्टर टी सेल जो बेटे है, इसी इफेक्टर टी सेल पे, ये एक सेल में मान लो इफेक्टर टी सेल है, इसी पे एक रिसेप्टर रहता है. उस रिसेप्टर को बेटे हम नाम बोलते टीसीआर. टीसीआर स्टैंड्स फॉर
टी सेल रिसेप्टर, और इसी टी सेल रिसेप्टर के साथ ये फॉरेन सब्सटेंस जो है ये बाद में बेटा बाइंड होता है। उसके लिए हमें पढ़ाना पड़ेगा एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ एमएससीज, हम उसके बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। भी बेसिक में बता रहा हूँ, फॉरेन सब्सटेंस जो है ये बाइंड हो जाएगा टीसीआर के साथ। दैट मींस इस फॉरेन सब्सटेंस ने स्टिमुलेट भी किया, बाइंड भी किया, और इसको भी हम बेटा नाम बोल सकते हैं इम्यूनोजन। सो आप याद रख लेना, अगर सिर्फ एक फॉरेन सब्सटेंस बाइंड होता है टीसीआर के साथ या बाइंड होता है एंटीबॉडी के साथ, वो एंटीजन है। अगर वो स्टिमुलेट भी करता है बी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को, और साइमल्टेनियसली उसको बाइंडिंग पावर भी है एंटीबॉडी के साथ या बेटे टी सेल रिसेप्टर के साथ, उस फॉरेन सब्सटेंस को जिसको बाइंडिंग पावर भी है, स्टिमुलेटरी पावर भी है, उस फॉरेन सब्सटेंस को बेटे हम नाम बोलते हैं इम्यूनोजन, और उस बाइंडिंग और स्टिमुलेटरी पावर को हम बेटे नाम बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। So immunogenicity explains antigenicity. That is why all immunogens are antigens. अब जो नेक्स्ट जो टर्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको बेटे हम नाम बोलते हैं हैप्टेन। हैप्टेन किसको बोलते हैं? नेक्स्ट टर्म विल बी डिस्कसिंग सर, उसको बेटे हम नाम बोलते हैं हैप्टेन। आप हैप्टेन किसको बोल सकते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है हैप्टेन्स जो है इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मैक्सिमम हैप्टेन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एंड दे आर एंटीजेनिक। एंटीजेनिक मींस हैप्टेन्स डू हैव द प्रॉपर्टी दे कैन बाइंड विद एन एंटीबॉडी एंड दे आर एंटीजेनिक। रिमेंबर, हैप्टेन्स आर एंटीजेनिक बट दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक। Haptens are low molecular weight antigen proteins, antigenic peptides. ये जो है ये बाय एंटीजेनिक है, इलिसिट ये इम्यून रेस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन ये इम्यूनोजेंस नहीं है। लेकिन ये इम्यूनोजेंस बन सकते हैं। एक हैप्टेन जो है जिसको एंटीजेनिक पावर है, जो एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर्स के बाइंड हो सकता है, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम टाइम्स पे होता है, लेकिन ये इम्यूनोजेनिक तब बन सकता है अगर ये किसी बायोमोलिक्यूल के साथ या किसी केमिकल के साथ अटैच हो गया। उस सब्सटेंस को बेटा हम नाम बोलते कैरियर। हम इम्यूनोलॉजी में उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो हैप्टेन के साथ मिले। हैप्टेन ऑलरेडी फॉरेन होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए फॉरेन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एंटीबॉडी टी सेल रिसेप्टर के साथ मिल सकता है, एंटीजेनिक होता है। लेकिन बेटा एक हैप्टेन जो है वो टर्न होता है इम्यूनोजन में तब जब उसके साथ कैरियर अटैच होता है। अब ये कैरियर जो है ये हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी केमिकल को हम बोलते हैं जो केमिकल या कोई सब्सटेंस जो है जो हैप्टेन के साथ मिले, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज करे और इसको कन्वर्ट करे इनटू एन इम्यूनोजन। क्योंकि हमें जो पहला टॉपिक पढ़ाना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इम्यूनोजन, उसमें इंपॉर्टेंट बात जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक बेटर इम्यूनोजन जो है वो उसको हम बोलते हैं जो फॉरेन होगा ही होगा, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 लाख डाल्टन से ज्यादा होगा। और यहाँ पे हैप्टेन्स का कभी मॉलिक्यूलर वेट 1 लाख डाल्टन से कम होता है, एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन कुछ एंटीजेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कभी कभार किसी बायोमोलिक्यूल के साथ, किसी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो टर्न हो सकते हैं into an immunogen. So haptens are low molecular weight antigen proteins which can turn into immunogen after binding with a carrier. उसके बाद जो है बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट जिसके बारे में बात करेंगे उसको बेटे हम नाम बोलते हैं दैट इज सेड टू बी कॉल्ड एज एपिटोप। प्लीज बी हियर। एपिटोप किसको बोलते हैं आपको जरूरी सीखना है। एपिटोप हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए मार्कर जो है ये वह एंटीजन है, ये कोई फॉरेन प्रोटीन है, ये कोई फॉरेन पेप्टाइड है जो हमारी बॉडी में घुस गया। लेकिन इसका जो है लेट मी से इस तरह डायग्राम बनाऊंगा, ये जो है लेट मी से दिस इज एन एंटीजन।
दिस एन एंटीजन। अब एंटीजन जो है बाइंड करता है, इम्यूनोजन भी बाइंड करता है। सो जब मैं बात करूंगा एंटीजन की तो मैं बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करता हूं, और जब मैं बेटे बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो आपको खुद समझना है कि मैं बोथ एंटीजन की भी बात करता हूं और इम्यूनोजन की भी बात करता हूं। अगर ये एंटीजन है, ये हमारी बॉडी में घुस गया, एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ मिले, या टी सेल रिसेप्टर के साथ मिले, उस पार्ट को बेटे हम नाम बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी कॉल्ड एज एपिटोप और उसको बेटे हम नाम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। बेटे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप हम किसको बोलते हैं? एपिटोप हम उस रीजन को बोलते हैं, इट इज दैट रीजन ऑफ एन एंटीजन, which binds with an antibody, or which binds with a T cell receptor. Strictly हम ज्यादा यूज करते हैं एंटीबॉडी के लिए। It is that region of an antigen which binds with an antibody or a T cell receptor. सुन लीजिए, ये मार्कर है। अब जो ये मार्कर का जो आगे वाला फ्रंट वाला पार्ट है, जो ब्लैक आपको देखता है, आप यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंटीजन है। ये जो फ्रंट वाला पार्ट जो है, ये मैं मान लेता हूं ये एपिटोप है बेटे। अगर मैं मान लूंगा ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, ये दोनों जब क्लोज आ जाएंगे तो आप देखेंगे मार्कर का जो फ्रंट साइड है वो सिर्फ बाइंड हो गया एंटीबॉडी के साथ। दिस इज एंटीबॉडी, दिस इज एंटीजन, ये आपस में मिले। So that means एंटीजन बाइंड हो, लेकिन एंटीजन सारा इसके साथ नहीं घुस गया अंदर। Only a part, that part of an antigen which binds with an antibody or a T cell receptor, बेटे उसी पार्ट को हम नाम बोलते हैं एपिटोप। अब आपको क्या सीखना है सर? यहाँ उसको हम बेटा नाम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। आपको कुछ एंटीजेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इट इज एंटीजन फर्स्ट, लेट मी से this one is antigen second, let me say this one is antigen third, let me say this is a viral protein, this is a bacterial protein, this is a fungal protein। ये तीनों हमारी बॉडी के लिए एंटीजेंस है। लेकिन अब देखेंगे इस, let me say this is viral protein, this one is bacterial protein, and this one is fungal protein, essence fungal, bacterial and viral। ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये तीन प्रोटीन जो हमारी बॉडी में घुस गए, किसी की बॉडी में घुस गए, तो ये तीनों एंटीजन बनेंगे उनके लिए, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है। लेकिन एंटीजन फर्स्ट पे जो है, लेट मी से मैं यहाँ पर ये रीजन दिखाऊंगा, लेट मी से इसकी जो एपिटोप की शेप है वो इस तरह से होगी, और मैंने एक ही दिखाया, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, लेट मी से these are the epitopes, मैंने यहाँ पे दो दिखाए, और उसके बाद लेट मी से these are the epitopes, right, these are the epitopes। so ये एपिटोप्स है, यहाँ पे मैंने एपिटोप एक भी दिखाया, यहाँ पे दो दिखाए, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप स्फेरिकल है, आप देखेंगे इसकी क्यूबॉइडल है, और उसके बाद इसकी ट्रायंगुलर है। जिस तरह से बेटे एक पर्टिकुलर लॉ को अनलॉक करती है, एज अ पर्टिकुलर की, लॉक एंड की मॉडल जो एंजाइम्स में हम पढ़ते हैं, पर्टिकुलर की अनलॉक्स अ पर्टिकुलर लॉक, इन द सेम वे डिफरेंट एंटीजेंस बाइंड विद डिफरेंट एंटीबॉडीज। Why different antigens bind with different antibodies? Because antigens पे जो epitopes होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो वेरी करती है फ्रॉम वन एंटीजन टू अनदर एंटीजन। और कुछ एंटीजेंस बेटे ऐसे होते हैं जिन पे एक ही एपिटोप होता है, उसको हम नाम बोलते हैं मोनोवैलेंट एंटीजन। और याद रख लेना, जो मोनोवैलेंट एंटीजन होगा उसके पास एपिटोप एक ही है, वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। लेकिन जिसके पास एपिटोप्स एक से ज्यादा होंगे, जिस तरह एंटीजन सेकंड और एंटीजन थर्ड में है एक से ज्यादा, उनको बेटा हम नाम बोलते हैं पॉलीवैलेंट एंटीजेंस। और लॉजिक सुन लीजिए भाई, नॉर्मली जब हम किसी के साथ ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं, तो हम राइट हैंड अपना लेते हैं, वो भी राइट हैंड लेता है, तो सलाम एक होती है। लेट मी से दिस इज वन ग्रीटिंग, मेरे पास दो हाथ है, इस हाथ से दूसरी ग्रीटिंग में करूंगा, दैट मींस मेरे पास दो एपिटोप्स है, दो ग्रीटिंग्स में कर सकता हूं एट अ टाइम। आई कैन बाइंड विद टू इंडिविजुअल्स, टू हैंड्स। लेट मी से जो दूसरा बंदा है वो एंटीबॉडी है, मैं यहां से एंटीजन हूं, दैट मींस उसके पास दो साइड्स है, मेरे पास भी दो साइड्स, हम मिलेंगे। अब जिस इंसान के पास ज्यादा हाथ होंगे, नेचुरली तो नहीं होते हैं, जिसके पास ज्यादा हाथ होंगे, एपिटोप्स उतने ज्यादा है, दैट मींस वो
एंटीबॉडीज के साथ ज्यादा से ज्यादा जल्दी इंटरेक्शन करेगा. ग्रेटर द नंबर ऑफ एपिटोप्स ऑन एन एंटीजन. My point is to say, greater the number of epitopes on antigen, the stronger the antigen. The stronger the antigen has the binding power, the stronger the antigenicity. The binding power, the antigenicity will be more because it is the same thing. The more the valency, the more the bonding. But you have heard in the chemistry, the more the valency, the more is the probability of forming the bonds with the respective atoms. But in the same way, the more the epitopes on an antigen, the more is the binding power. Now, so epitope, what is an epitope? It is that site, that region, that antigen determinant, that region, that three-dimensional site which binds with an antibody or a T cell receptor. So simple logic. एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ मिलता है, ये एंटीजन जब टी सेल रिसेप्टर के साथ मिलता है, सारा नहीं बाइंड होता है. एंटीजन का ओनली पार्ट बाइंड होता है और उस पार्ट ही को बेटा हम एपिटोप बोलते हैं. और कुछ एंटीजन्स पे वो एपिटोप एक ही होता है, कुछ एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए उन एंटीजन्स को बेटा हम नाम बोलते हैं पॉलीवैलेंट एंटीजन्स. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म, अनदर टर्म है जिसको हम बेटे नाम बोलते हैं पैराटोप. पैराटोप अब समझिए, एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन, राइट? वो हमने सीख लिया. एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन, बट पैराटोप जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन. हम पढ़ाएंगे इसका स्ट्रक्चर. इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और antibody which is produced by the plasma cells, as I said earlier. Sir, part of an antibody which binds with epitope of antigen. Please be here. मैंने मार्कर को नाम रखा था एंटीजन, इसके फ्रंट वाले पार्ट को पढ़ा नाम एपिटोप. अब लेट अस सपोज ये वह है, ये एंटीबॉडी है, ये आप समझ लीजिए ये पूरा हाथ जो मेरा है ये एंटीबॉडी है. इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आप समझ लीजिए ब्लू कैप जो है इज अ पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी. So let me say this first hand, this right hand, this is antigen and this is antibody. So when they will touch only their parts. इस हाथ का ये पार्ट, ये और इस हाथ का ये पार्ट, ये आपस में बाइंड हो जाएगी. ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है. इस पार्ट का नाम पड़ेगा एपिटोप, इस पार्ट का नाम पड़ेगा पैराटोप. सो पैराटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीबॉडी. जो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन, लेकिन जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिलती है, पूरा एंटीजन के साथ नहीं मिलती, एंटीजन के एपिटोप के साथ मिलती है. और जो एपिटोप के साथ टच करता है, इंटरेक्शन करता है बेटे, उसी को हम नाम बोलते हैं पैराटोप. अब जो नॉर्मल एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स बनाती है, याद रख लेना उन पे एक एंटीबॉडी पे यूजुअली 2 पैराटोप्स रहते हैं, क्योंकि एक एंटीबॉडी में जो है ना उसमें बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं. An antibody is made up of 4 polypeptide chains. ये लीजिए, it's made up of 4 polypeptide chains. और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है, एंटीबॉडी जो है, वो इस तरह से आपस में 3-dimensional structure, यानी the 4 polypeptide chains are folded during the protein folding which takes place in the endoplasmic reticulum under the influence of chaperones. You might have heard in the cell biology. Proteins, when they're formed in their nascent form, that is primary structure, linear sequence of amino acids which are held together by peptide bonds. But this protein then goes into the rough endoplasmic reticulum, where under the influence of chaperones it turns either into a secondary structure. Some proteins are the final structure, that is tertiary, maximum. And then there are some proteins who do have an advanced structure that is quaternary, like hemoglobin. But I'm saying the antibodies, which are made up of 4 polypeptide chains, they are linked together in such a way that they assume Y-like structure. An antibody has a Y-like structure. अब जो एंटीबॉडी का ये वाला रीजन है, इन रीजन्स को हम बेटा नाम बोलते हैं आर्म्स, और इसको हम बेटा नाम बोलते हैं स्टम्प. फिर हम पढ़ाएंगे, इसको हम एफसी बोलते हैं, इसको फैब बोलते हैं. सो हम इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे. लेकिन जो आर्म ऑफ एन एंटीबॉडी है, आर्म से ही हम पकड़ते हैं ना. एक एंटीबॉडी के पास 2 आर्म्स रहती है, सो दैट मींस ये एट अ टाइम एक आर्म से एक एपिटोप के साथ मिलता है और दूसरे आर्म से दूसरे एपिटोप के साथ मिलता है. दैट मींस अगर एंटीजन्स पे एक एंटीजन पे 2 एपिटोप है, तो एक सिंगल एंटीबॉडी भी उसके साथ बाइंड हो सकती है, क्योंकि एक एंटीबॉडी के पास 2 आर्म्स रहते हैं. सो इसीलिए ये आर्म्स जो है, इनको हम कभी कभार नाम बोलते हैं फैब. दैट फ्रेगमेंट ऑफ एन एंटीबॉडी which binds with an antigen, fragment having antigen binding power.
इन द सेम वे इसको हम बोलते हैं फैब और इसको हम नाम बोलते हैं एफसी। सो एक टिपिकल एंटीबॉडी में दो आर्म्स रहती है और आर्म्स के थ्रू ही ये बाइंड होता है। अब जो आर्म है बेटा, आर्म जो है अगर आप देखेंगे, आर्म जो है लेट्स सपोज ये एक चेन है, इसको हम बोलते हैं ये हैवी चेन है, इसमें ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होता है, और इसको हम बेटा नाम बोलते हैं लाइट चेन। अब जो लाइट चेन और हैवी चेन है यहां से लेके यहां तक की आर्म है, लेकिन जब एक एंटीबॉडी की आर्म बाइंड होती है, ये पूरी की पूरी आर्म नहीं बाइंड होती है, सिर्फ इसका टर्मिनल रीजन बाइंड होता है। द टर्मिनल रीजन ऑफ द आर्म ऑफ एन एंटीबॉडी, प्लीज बी हियर, द टर्मिनल रीजन of the arm of an antibody, you say this is an arm, लेकिन अगर किसी को मैं पकड़ूंगा, मैं हाथ से पकड़ूंगा ना, पूरी आर्म उसके साथ टच नहीं करेगी, and only the arm, only the hand will touch. In the same way, when an antibody touches, makes a contact with an epitope, when an antibody makes a contact with an epitope, उसकी जो आर्म का जो टर्मिनल पार्ट है, उसी टर्मिनल पार्ट को भेजे हम नाम बोलते हैं पैराटोप, उसी को हम बेटे नाम बोलते हैं पैराटोप। सो यू हैव टू रिमेंबर, पैराटोप इज दैट पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी। Antibodies are called as immunoglobulins, globulins, those proteins that are soluble in blood, water, and immuno, which are role in the production. That is why they are called as immunoglobulins. They bind with the epitope of an antigen. So remember, when an antigen binds with an antibody, it is the epitope of an antigen and the paratope of an antibody which make interactions, and those interactions are non-covalent in nature. This is very interesting. Very important thing is that जब एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलता है, टीचर्स बोलते हैं भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया पर डिसोसिएट नहीं हुआ। ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन है नॉन कोवेलेंट, और इसमें जो मेन डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस में जो मेन डायरेक्शनल बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज द नंबर and the orientation of the hydrogen bonds which determines why a specific antigen binds with a specific antibody. You might have heard enzymes are the active sites. The active site binds with the binding site on the substrate. A specific enzyme binds with a specific substrate is basically that particular active site makes a particular number of hydrogen bonds with a particular substrate. In the same way, a particular antigen binds with a particular antibody. A particular antibody binds with a particular antigen because antigen पे होता है epitope, antibody पे होता है paratope. उन epitope और किस epitope और paratope के दरमियान सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, van der Waals इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शन बनेंगे ना भाई, वही एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिलेगा, और उस रीजन को हम बेटा नाम बोलते हैं paratope. Maximum antibodies have two paratopes, but some antibodies exist in, this is monomeric form, some antibodies exist in dimeric form, some exist in pentameric form. आपको एंटीबॉडीज के नाम अगर याद रखने हैं तो ट्रिक एक याद रखिए, GAMD. This called as immunoglobulin G because antibodies are called as immunoglobulins, IgG. This called as IgA, this called as IgM, this called as Ig, this called as IgD. These are the types of antibodies. अब जो IgG जो है, IgE जो है, IgD जो है, मैक्सिमम टाइम G, E and D they exist in monomeric form, यानी एक एंटीबॉडी अलग अलग है। लेकिन अगर IgE आप देखेंगे, सेक्रेटरी IgA जो सिक्रीशंस में होता है, टीयर्स में होता है, स्लावा में होता है, आपको वहां पे दो एंटीबॉडीज एक साथ मिलेंगी। For example, this is light chain, this one is heavy chain, this is light chain, this called as heavy chain. Why light? Because it contains less number of amino acids. Heavy because it contains greater number of amino acids, because I have clearly told there are 4 polypeptide chains. Two are called as light and two are called as heavy. ये एक IgA है, दूसरा IgA भी ऐसा ही होगा, light chains and heavy chains, but ये आपस में मिले होते हैं, joining chain. That means पैराटोप एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, ये पैराटोप है, 4 पैराटोप्स आ गए, जितना पैराटोप ज्यादा है उतना एपिटोप और पैराटोप का इंटरेक्शन इजीली होगा। सो इसीलिए जो IgA है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी IgA, उसमें दो IgA मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइमेरिक IgA, और डाइमेरिक IgA पे बेटा रहते हैं 4 पैराटोप्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मेरे बच्चे को याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज IgM. IgM जो बेटा है, ये वो एंटीबॉडी है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, but it exists IgM. This is neat point, endurance point. Will be asked which antibody has highest number of paratopes.
Remember, it is IgM. It exists as a pentamer in the blood, in the plasma part of the blood, because antibodies are secretions, they're proteins, they're globular proteins, glycosylate proteins, they exist in प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड। और बेटे याद रख लेने एग्जिस्ट करता है पेंटामर। ये हो गया मोनोमर, ये हो गया मोनोमर, दो मिले बन गया डाइमर। आप खुद समझ लीजिए पेंटामर, एक मोनोमर में दो पैराटोप्स होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। ये समझ लीजिए ये हैवी चेन्स है, ये वह हैवी चेन्स है, हैवी चेन्स है, हैवी चेन्स एंड हैवी चेन्स। दीज आर हैवी चेन्स, these are heavy chains, heavy chains, heavy chains। और इन पे डाल दीजिए लाइट चेन्स। these are light chains, light chains, light chains, light chains and light chains। आप देखेंगे इनमें बीजे चेन होता है, जॉइनिंग रीजन होता है। मैं वो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, डिटेल में हम पढ़ाएंगे। सर यहाँ पे एक पैराटोप है, पैराटोप, दिस पैराटोप। So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। So this is IgM. IgM has maximum number of paratopes. It has 10 paratopes। सिंपल सी बात है। तो भाई कोई गन है, एक ही गोली है, एक इंसान मर सकता है। किसी में 2 गोलियां हैं, 2 इंसान मर सकते हैं। किसी में 10 गोलियां हैं तो 10 इंसान मर सकते हैं। सो किस में कितना बाइंडिंग पावर है ना, ये डिपेंड करता है सर कितने पैराटोप्स है। और IgM जो बेटे है इसमें सबसे ज्यादा पैराटोप्स है, 10 पैराटोप्स है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसको बाइंडिंग पावर सबसे ज्यादा है। और याद रख लेना, इसके हवाले से आपको और एक टर्म आपको याद रखनी है, जिसमें एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज एफिनिटी। और एक टर्म है उसका नाम है एविडिटी। यहां पे भाई एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, विच एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट एविडिटी। पहले तो बच्चे को सीखना है ना एविडिटी क्या है। एविडिटी में इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। एक पैराटोप को, दिस लेट मी से दिस इज पैराटोप, लेट मी से यहां पे लूंगा, लेट मी से दिस एन एंटीजन, समझ लेना एंटीजन। इस एंटीजन का लेट अस सपोज ये है एपिटोप, आराम से सीख लेगा, ये है एपिटोप। एंटीजन का ये एपिटोप है। एक the ability of one paratope, because this is an antibody, this is paratope, the ability of one paratope to bind with one epitope, how much interest one paratope has to make an interaction with one epitope. If it is this is an epitope, this is an antigen total, this is an antibody, so how much affinity they have to come close to each other, that interaction, that ability to have an interaction, that is called as affinity. So when we define affinity, we talk about one epitope, one paratope. One epitope, one paratope interaction is called as affinity, right? Now, if we are talking about many epitopes and many paratopes, if we are talking about summation of affinities, we are talking about avidity. So bete, avidity means summation of affinities. यानी अगर आप बात करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लूंगा ये एंटीजन सेकंड है, उस एंटीजन सेकंड पे लेट मी से these are epitopes। मैंने पॉलीवैलेंट एंटीजन लिया। पॉलीवैलेंट एंटीजन का मतलब हुआ जिसमें एपिटोप्स एक से ज्यादा है। सो दैट मींस अगर मैं बात करूंगा ये पैराटोप है, दिस विल इंटरेक्ट विद दिस, लेट मी से दिस वन विल इंटरेक्ट विद दिस विल इंटरेक्ट विद दिस विल इंटरेक्ट विद दिस। इसकी अपनी एफिनिटी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। दैट मींस जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे एफिनिटीज का, व्हेन वी कंबाइन एफिनिटीज, summation of affinities, remember summation of affinities, what is summation of affinities? जहां तक मैंने इसको समझा है, it is when we talk about many epitope and many paratope interaction. When you are talking about one epitope, one paratope interaction, power, affinity, that is affinity. But when you are talking about combination, many paratopes and many epitope interaction, याद रख लेना, उसको बेटा हम नाम बोलते हैं avidity। अब खुद समझ लो, एक एंटीबॉडी पे यूजुअली होते हैं 2 पैराटोप्स। इस पैराटोप को अपनी एफिनिटी है, दोनों की बात करेंगे तो एविडिटी बन जाता है। अब जिस एंटीबॉडी जो एग्जिस्ट करती है एज अ पेंटामर, दैट इज IgM, इसको बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पैराटोप्स आर देयर। सो 10 पैराटोप्स मींस 10 एपिटोप्स।
So we are talking about many epitope-paratope interaction. Greater the number of paratopes, greater the epitope-paratope interaction, greater the summation of affinities, greater will be the avidity. So in entrance examination, it will be asked for which antibody has highest avidity. So मेरे बेटे उस वक्त आप लिख लेना IgM, क्योंकि IgM में बेटे होते हैं नंबर ऑफ बेटे पैराटॉप्स 10 पैराटॉप्स, और वहां पे जो है बेटे उस एंटीबॉडी की जो एविडिटी है वो बेटे सबसे ज्यादा होती है। तो हमने बात की एंटीजन की, हमने बात की इम्यूनोजन की, हमने बात की हैप्टिन की, हमने बात की एपिटोप की, हमने बात की पैराटोप की, हमने बात की एफिनिटी और एविडिटी की। मैंने प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स भी जाना। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स स्लो होता है, अभी मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स नहीं बनी होती है, पहचानना पड़ता है। फिर जब वो बन जाती है उसके बाद अगर वही पैथोजन दोबारा बॉडी में घुसता है उसके लिए जो रेस्पॉन्स है वो क्विक होता है। ये बराबर वही बात है, आपके घर में कोई चोर आ गया, आपके घर में सीसीटीवी लगा है और लेकिन वो चोरी करके भाग गया, अगर वो कभी दोबारा आपके रास्ते से गुजर गया तो एकदम से आप मार दोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेमोरी, आपके कैमरा की जो मेमोरी है उसने ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज किया वो कैसा था। That is why the second response is very much quick. Is very much quick. And now there is another term, सर जिस टर्म को हम बेटे नाम बोलते हैं, जिसको आप नाम बोलते हैं एग्रीटोप। लेकिन एग्रीटोप को अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रैंकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, दैट इज एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। हम क्या बोलते हैं, एग्रीटोप इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड एंटीजन। So there are not two things. One is antigen and there is processed antigen. That is why better is that we'll discuss this एग्रीटोप in antigen processing and presentation। मैं फिर भी definition बोल के रखूंगा। एग्रीटोप हम किसको बोलते हैं, ये एंटीजन के, प्रोसेस्ड एंटीजन के उस पार्ट को बोलते हैं जो MHC मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है। It is the part of that processed antigen. It is a part of that processed antigen which binds with the MHC molecule. MHC means major histocompatibility complex. They are also called as human leukocyte antigens. They play an important role in antigen presentation. They expose the strategy of intracellular pathogens. MHC जो है ये वो प्रोटीन्स है, अगर कोई पैथोजन जो है वो हमारी सेल के अंदर बैठ गया, घुस गया, फिर वो बाहर नहीं निकलता, हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं लग जाएगा। But we have some proteins which come to our rescue. मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं लेट अस सपोज एक सेल है, लेट अस सपोज एक वायरस है, ये वायरस हमारी सेल में घुस गया, ये बन गया बाय इंट्रासेलुलर पैरासाइट या इंट्रासेलुलर पैथोजन या इंट्रासेलुलर वायरस अंदर बैठ गया। ये वायरस जो है ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है फॉर इट्स ओन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, दे डू नॉट हैव ऑल द एंजाइम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। दे यूज द होस्ट सेलुलर मशीनरी, they use the host cellular machinery in order to multiply, not replicate। अब वायरस कोई अंदर हमारी सेल में भाई घुस गया, उसके बाद इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को पता नहीं चलता है कि वायरस अंदर बैठा है सेल में। लेकिन उस टाइम पे कौन से प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बोलते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बोलते हैं भाई आ जाओ और इस सेल को खत्म कर दो। याद रख लेना उन प्रोटीन्स, क्योंकि वायरस जो है भाई ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनाएगा प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स को वायरल प्रोटीन्स नाम देंगे। अगर हमने इस वायरस को ज्यादा टाइम दिया, if we give the maximum time to the virus to survive within the human body, remember it will multiply, it will form thousands of copies, then it will show the lytic cycle, then those thousands of viruses will attack the rest of the cells and body will collapse। So at what time which proteins come to rescue, what the cell does, when the host cell does, इसको जो पता चलता है कि भाई मेरी होस्ट सेलुलर मशीनरी को यूज किया जा रहा है, ये होस्ट सेल जो है, ये न्यूक्लियड सेल जो है बेटा ये कुछ प्रोटीन्स बनाती है, उन प्रोटीन्स को ही हम नाम बोलते हैं MHCs, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं MHC फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, MHC थर्ड क्या होता है। और जो MHCs है, लेट्स सपोज मैं बोलूंगा ये MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये वायरल प्रोटीन्स जो है ये बाइंड होते हैं, उसके बाद ये एक्सपोज होते हैं बाहर की तरफ। याद रख लेना जो नॉर्मल सेल्स होती है जिनमें वायरस नहीं होता है, उन नॉर्मल सेल्स पे MHC मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता है along with the viral protein। जो नॉर्मल सेल होगी, नॉर्मल सेल पे अगर कभी कभार MHC प्रेजेंट भी होगा बाहर की तरफ, लेकिन उस पे वायरल प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि वायरल प्रोटीन उसी वक्त होगा जब वायरस अंदर सेल में है। अब इस पैथोजन की स्ट्रेटजी को बाहर करना है, we have to expose the strategy of an intracellular pathogen, mark my words what I'm saying।
we have to sometimes expose the strategy of an intracellular pathogen. So at what time? At that time, the MSCs come to the rescue. What they do, they bind those viral proteins with themselves and expose them to the outside. और हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, वो भाई पहचानती है कि कौन सी सेल नॉर्मल है, कौन सी सेल एबनॉर्मल है, कौन सी सेल नॉर्मल है, कौन वायरस इन्फेक्टेड है, क्योंकि जिस सेल ने एमएससी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस किया होगा along with the viral protein, याद रख लेना वो सेल जो है वो एक्ट करती है एज अ टारगेट सेल, उस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो हमारी सेल्स होती है उन सेल्स को हम नाम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. दैट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, remember, they recognize those cells which express MSC along with the viral protein. अब जो ये viral protein है, ये हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है. viral protein का वो पार्ट जो MSC के साथ बाइंड होता है, MSC के साथ बाइंड होता है, viral protein का वो पार्ट जो MSC के साथ बाइंड होता है, बेटा उसी को हम नाम बोलते हैं. that part is said to be called as epitope. लेकिन ये पढ़ना है कि how antigen processing and presentation takes place and how cytotoxic T cells recognize ये नॉर्मल सेल है, इसमें वायरस नहीं है, ये एबनॉर्मल सेल है, इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन बना है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, भाई इसमें वायरस है. वो तभी जब उस सेल ने एमएससी को बाहर की तरफ लाया होगा, वायरल प्रोटीन को, भाई आ जाओ, ये इस पे वायरल प्रोटीन है, अंदर वायरस बैठा है, अगर इस सेल को आपने टाइम दे दिया, वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा. बेटर ये है कि इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को एलिमिनेट करें. That is why MSCs are the glycoproteins, major histocompatibility complex, first reported in the leukocytes in the humans. That is why they are called as human leukocyte antigens. They play an important role to expose the strategy of intracellular pathogens. And another point, MSCs are individual specific. As VNTRs, variable number of tandem repeats, you might have heard about the DNA fingerprinting. They are specific to the individual. In the same, MSCs are specific. That is why when you talk about the organ transplantation, the donor and the recipient, their MSCs should match. Otherwise, there will be failure in the organ transfer. That is why we call it HLA typing. Before the donor is going to give the organ, we do the HLA typing between the donor and the recipient. This was about the agritopes. Agritope, what is an agritope? It is the part of that viral protein. It is a part of that processed antigen which binds with an MSC, and later on this MSC and the viral protein, this is exposed to the outside so that the immune system cells will detect it, they will recognize it and eliminate this host cell so that the virus should not survive within the human body. This was about the agritope. Now, there is last term and my next lecture, I'm talking about particularly to those students who are right now in the 5th semester and are going to opt immunology as a core paper in the 6th semester through the Kashmir University and who are registered with the Kashmir University, and those students who are right now in the 12th class, उनमें एक चैप्टर में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्यून सिस्टम के बारे में आपको भी पढ़ना है. अब जो लास्ट टर्म जिसके बारे में बात करूंगा, देन आई एम गोइंग टू कंक्लूड, दैट इज कॉल्ड एज एलर्जिन. एलर्जिन हम किसको बोलते हैं? एलर्जिन्स वो सबस्टेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं. ये भाई लेमैन की तरह है. भाई एलर्जिन सिंपल टर्म है, वो सबस्टेंस है जो एलर्जी काज करते हैं. ये बच्चा नहीं बोलना चाहे, जो इम्यूनोलॉजी का स्टूडेंट होगा वो बोलेगा एलर्जिन भाई वो सबस्टेंस है जो क्रॉस लिंकेज करता है, जो ब्रिंग्स क्रॉस लिंकेज ऑफ IgE molecules, antibody E molecules, and brings degranulation मैं पढ़ाऊंगा, and brings degranulation of basophils, या हम उनको नाम बोलते हैं mast cells. Basophils and mast cells, they are the same biochemistry, but they have the different origins as per the modern lines of cytology are concerned. They bring the degranulation of mast cells. मैं यहाँ पे लिखूंगा और एक नाम cell, those are said to be called as basophils. अब सुनिए, कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो एलर्जी काज करता है उसको हम एलर्जी बोलते हैं लेमैन की तरह, सिंपल. लेकिन इम्यूनोलॉजिकल वर्ल्ड में हम उस सबस्टेंस को, उस फॉरेन एजेंट को, उस पोलन ग्रेन को, उस डस्ट पार्टिकल को जो बॉडी में घुस के
IgE मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा, दो IgE मॉलिक्यूल को क्रॉस लिंक करेगा, आपस में मिलाएगा और उसके बाद बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स की कराएगा डिग्रेनुलेशन, ताकि वहां पे ग्रेन्यूल्स में जो सबस्टेंस है, हिस्टामाइन जो है, सेरोटोनिन जो है, वो जब रिलीज हो जाएंगे, वासोडाइलेशन होगा और याद रख लेना वहां हाइटेंड इम्यून रेस्पॉन्स आ जाएगा। उसी हाइटेंड इम्यून रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी या उसको हम नाम बोलते हैं एलर्जी। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, अब यहाँ पर सुनिए। लेट अस सपोज ये वह है बेसोफिल, ये भी मास्ट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और लेट अस सपोज दीस आर द ग्रैन्यूल्स व्हिच कंटेन हिस्टामाइन, दीस आर द ग्रैन्यूल्स। अब जो ये बेसोफिल है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर रिसेप्टर रहता है, उसको हम बेटा नाम बोलते हैं FCR, the receptor for the FC region, और उसको हम बोलते हैं FCR epsilon. Epsilon means it is meant for the IgE antibody. IgE antibody का जो सिस्टम है वो इस तरह से बाइंड होता है और उसका जो आर्म्स है वो इस तरह से होते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूंगा this is FC region, FC region, and this one will be called as FCR epsilon. Why it is called as IgE? Because the heavy chain of the IgE antibody is called as epsilon heavy chain. That is why it's called as IgE. अब सुनिए, यहाँ पे दूसरी IgE में लूंगा, समझ लेना ये वह है हैवी चेन, ये लाइट चेन है, ये इसके पैराडॉक्स होंगे। सो इसका अपना रीजन है FC रीजन। सो दिस इज वन IgE एंटीबॉडी एंड दिस अनदर IgE एंटीबॉडी। सो मेरे बेटे को याद रखना है, जो बेसोफिल्स है, जो मास्ट सेल्स है, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स रहते हैं IgE एंटीबॉडी के लिए। एक ही नहीं, बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स रहते हैं और मैंने दो रिसेप्टर्स की बात की। और याद रख लेना जो एलर्जन होता है, अगर कोई फॉरेन सबस्टेंस आ गया, समझ लेना ये फॉरेन सबस्टेंस है, लेट मी से ये फॉरेन सबस्टेंस है, प्लीज बी हियर, ये फॉरेन सबस्टेंस है। अगर इस फॉरेन सबस्टेंस पे दो एपिटोप्स है, समझ लेना दो एपिटोप्स है, ये एपिटोप फर्स्ट है, दीज आर एपिटोप्स। अगर ये एपिटोप्स एक पैराटोप के साथ यहां बाइंड होता है, दैट मींस ये फॉरेन सबस्टेंस जो है वो एक ही IgE मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गया। Remember, at that very time, allergy is not going to happen, because allergy happens, the cell, the basophil, the mast cell, remember, the mast cell, the basophil is stimulated to undergo the degranulation only and only when two IgE molecules undergo the cross linkage. और वो cross linkage कब होगा? जब यही foreign substance जो है, केस नंबर सेकंड में लूंगा, जब यही फॉरेन सबस्टेंस जो है, सर इसमें भी अपना पैराटोप होगा, ये फॉरेन सबस्टेंस जो है, ये फॉरेन सबस्टेंस जिसके बारे में इसका एपिटोप एक IgE मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, इस वाले, और दूसरा एपिटोप जो है, ये एपिटोप जो है ये इस पैराटोप के साथ बाइंड होगा। दिस इज पैराटोप, तो समझ रहे हो ना भाई, दिस इज पैराटोप, दिस एपिटोप पैराटोप इंटरेक्शन, मैंने आपको बोला था ऑफ द वाटर इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स गेट फॉर्म्ड एंड दिस एपिटोप पैराटोप इंटरेक्शन जो है एक के साथ बाइंड होगा, दूसरा एपिटोप जो है वो और एक के साथ बाइंड होगा। दो IgE मॉलिक्यूल एक ही फॉरेन सबस्टेंस के साथ बाइंड हो गए। व्हेन अ फॉरेन सबस्टेंस हैव दोस एपिटोप्स which can bind with the two IgE molecules will cross-link them. When the cross-linkage of the IgE takes place, it undergoes the conformational change. That conformational change gives cell signaling through the FCR epsilon receptors to the cell to bring the degranulation and to release the granules containing the histamine and the serotonin in the blood. That histamine brings the vasodilation, heightened blood supply towards the peripheral areas, peripheral blood capillaries, and that results in what we call as hypersensitivity. There are no doubt different types of hypersensitivities and different mechanisms are involved, but I'm talking about the main hypersensitivity, how the basically hypersensitivity to the degranulation of the mast cells takes place. So any substance which causes allergy, which is foreign, like a pollen grain, like a dust particle, will be called as allergen. It is layman's language, but a student of immunology should say any substance which enters into your body and brings
and binds with the two Ig molecules which are present on the basophil, which are present on the mast cell, brings their cross linkage. That cross linkage is necessary to bring the degranulation of the mast cells to release the contents in the bloodstream, which are very much important for bringing the vasodilation, increase in the peripheral circulation. That peripheral circulation leads to the redness, and remember, that is a sign of an allergy, that is a sign of an hypersensitivity. This was all about antigen, immunogen, epitope, paratope, affinity, avidity, and primary immune response, secondary immune response, hapten, and now the allergen. These are some of the basic terms which are used in the subject of immunology. Now the second lecture, my second lecture will be on directly, strictly as per your syllabus, what are the characters or features of a good antigen. Till then, Allah Hafiz, dua mein yaad rakhiyega. God bless you.